ان سے پہلے بالکل بیٹھے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی اچانک ریولوشن آ جائے اور اچانک لوگ نکل کے آ جائیں اور ہم کہیں کہ دیکھا ہماری جو بوائیکاٹ کے باوجود عوام کا سیلاب امڈ آئے, اور عوام کا سیلاب اگر امڈ آئے دھاندلی کے باوجود تو آر ٹی ایس بند کرنا پڑتا ہے آپ کو, اس کے باوجود آپ پنجاب جیت جاتے ہیں, دھاندلی سے آپ سے پنجاب کی حکومت چھینی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. آپ کو کام کرنا آنا چاہیے, جن کو کام کرنا نہیں آتا ان کو آپ بیسٹ ٹیم دے دو. یہی ٹیم کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھی نا, یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے کوئی نئی بیوروکریسی نہیں کہ یہی ٹیم پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور جہاں بننا ہو اور جہاں پہ جھوٹ کی, منافقت کی اور سازش کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. تمام جو 50,000 سکولز ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ کے اندر اندر کوئی سکول ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر آپ کا جو کلاس رومز کی شارٹیج ہو, فرنیچر کی شارٹیج ہو. اب ہم نے سکول میل پروگرام بھی شروع کر دیے جہاں پہ جو غریب بچے ہیں یا غریب گھروں سے جو بچے آتے ہیں ان کو پہلے ہم نے ماشاءاللہ کتنے لاکھ لوگ بچے جو ہے وہ دودھ کے لیے دودھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ روز 1100,000 1.1 ملین الحمدللہ. 11 لاکھ بچے جو ہیں ساؤتھ پنجاب میں ان کو روز دودھ کا پیکٹ ملتا ہے الحمدللہ. اور بہت سارے سکولز میں لنچ بھی ان کو ہم سرو کر رہے ہیں اور ہم اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صرف لاہور میں 70,000 بچوں کو لنچ دے رہے ہیں. بالکل, لاہور میں صرف 70,000 بچوں کو جو ہے ہم لنچ دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں تقریباً ہمارے پاس 45,000 ہے اکراس پنجاب. ان کے ہر شہر میں ہم نے اسپیشل افراد کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنایا ہے اور ان بچوں کو بھی ہم دودھ اور فورٹیفائڈ بسکٹس روز کے دے رہے ہیں. اور اس میں ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ ہمارے ریگولر اسکولز میں بھی بڑھ گئی ہے اور جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں ان کی بھی انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. 30,000 اسپیشل افراد بچوں کا آپریشن ہوا ہے جو آپریشن کے بعد اب وہ مین اسٹریم میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ. پنجاب میں جو ہسٹورک فلڈز آئے تھے اس دفعہ 3 مہینے 2 مہینے کے, اب 2 مہینے ہوئے ابھی فلڈز کو آئے ہوئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پنجاب میں فلڈ آیا تھا؟ اور یہ بات جب پیر پگارا صاحب سندھ نے جب یہ بات کی تھی کہ ابھی پنجاب میں بہت فلڈز آئے ہوئے ہیں, جس طرح پنجاب کی حکومت کام کر رہی ہے 2 مہینے بعد کوئی نہیں کہہ سکے, انہوں نے کہا تھا 4 مہینے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ پنجاب میں کبھی فلڈ آیا تھا. یہ انہوں نے پہچان لیا تھا جن کو میں نہیں جانتی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 مہینے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب کے کسی علاقے میں فلڈ آیا تھا. اور نہ صرف یہ کہ الحمدللہ 5 ملین افراد کو محفوظ مقامات پہ ٹائملی پہنچایا گیا, ان کی ایویکویشن کی گئی, ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا. پنجاب کی پوری حکومت نے, چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو, چاہے وہ پولیس ہو یا وہ ایڈمنسٹریشن ہو شہروں کی یا وہ کوئی بھی ہو, جس طرح سے پنجاب کی ہر ڈپارٹمنٹ نے یکجان ہو کے ایک حکومت بن کے ایک یونٹ بن کے کام کیا. دوسرے صوبوں کے لیے ایک مثال ہے بہت بڑی ماشاءاللہ. اور آج اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا تو تاریخ کا سب سے 1 مہینے کے اندر اندر وہ 5 سے 6 ملین افراد کا سروے کیا گیا اور 1 مہینے کے اندر اندر ان سب کا حق ان کے دروازے پہ پہنچایا گیا ماشاءاللہ. کسی سے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا اور میری اس بارے میں جو کچھ گرما گرمی بھی ہوگی لیکن میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا خیال رکھا. بہت آسان بات ہے کہ آپ کی جو آپ کے ملک میں مصیبت آ گئی ہے تو آپ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. نہیں, پنجاب کے عوام کے وسائل سے ہم نے پنجاب کے عوام کے حق ان کو دیے ماشاءاللہ. اور اگر جو وسائل آپ کو ملتے ہیں وہ اگر آپ کے عوام کے وسائل عوام پر خرچ نہیں ہوگے تو وہ کہاں خرچ ہوں گے؟ اور جہاں پر عوام کے وسائل عوام پر نہیں خرچ ہو رہے ان لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے, ان کو پوچھنا چاہیے کہ ہمارے وسائل جو ہے وہ کہاں ہیں. تو میں اسموگ آپ دیکھیں, دنیا حیران ہے کہ اسموگ کدھر گئی 1 سال کے اندر اندر. میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن پچھلے سال اور اس سال کا آپ مقابلہ کر لیں. پچھلے سال جو ہماری فضا تھی, ہمارا ہورائزن تھا, وہ بہت پولوٹڈ تھا, نظر آتا تھا. بہت نیچے تک جو ہے وہ اسموگ کی ایک پوری لیئر آئی ہوئی تھی. اب آپ پچھلے سال کے سلائسز اٹھا کے دیکھ لیں, اس سال کے دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے.
पिछले हर साल आपको अक्टूबर नवंबर में पूरी मार्केट शट डाउन करनी पड़ती थी, स्कूल शट डाउन करने पड़ते थे, बिजनेस जो है वो रोकना पड़ता था, रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता था, शादियों को रोकना पड़ता था, गैदरिंग्स को रोकना पड़ता था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर पूरा गुजर गया है, अक्टूबर पूरा गुजर गया है, एक स्कूल को बंद नहीं करना पड़ा, एक जो है आपको कोई बिजनेस सेंटर आपको बंद नहीं करना पड़ा, कोई रास्ता आपको बंद नहीं करना पड़ा, कोई रेस्टोरेंट आपको बंद नहीं करना पड़ा। और अस्पतालों में लाइनें लगी होती थी, लोगों के सांस के इमराज होते थे, आंखों के इमराज होते थे, गला खराब, जुकाम, खांसी, फ्लू, इस जो पोल्यूशन की वजह से या स्मॉग की वजह से इतनी बीमारियां थी, अस्पतालों में जगह नहीं रहती थी। आज अल्लाह ताला का आप देखो शुक्र कि अस्पतालों में कोई लाइन नहीं लगी हुई, अस्पतालों में कोई मरीजों की क्यों नहीं है, क्योंकि एक हुकूमत थी जिसने अवाम का सोचा, जिसने अवाम के लिए दिन रात जो है वो एक की। और ये दूसरे सूबे भी जो हैं वो ये सब देख रहे हैं। अब हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कैसे? ये अल्लाह ताला के फजल से ये तभी मुमकिन हुआ है जब आपके पास एक एग्जाम्पल थी लोगों को बताने के लिए कि केपीके की अवाम किस खिदमत से महरूम है, उनको समझ आ गई है। आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, अपने घर में बैठे हुए अपनी स्क्रीन के ऊपर लोगों को पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? लोग अपने सूबों में तरक्की देखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिले, वो चाहते हैं हमें लैपटॉप्स मिले, वो चाहते हैं हमें ग्रीन बाइक्स मिले, वो चाहते हैं उनकी रोटी सस्ती हो, वो चाहते हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, वो चाहते हैं उनकी सड़कें स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वो चाहते हैं उनको ग्रीन बसेस मिले, वो चाहते हैं उनको सस्ती और मेयारी सवारी मिले, वो चाहते हैं उनकी हवा और उनकी फजा बेहतर हो, वो चाहते हैं कि उनको उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अच्छी तरीके से मिले, उनके घर डोर स्टेप पे उनका काम हो, वो चाहते हैं कि रिश्वतखोरी बंद हो, वो चाहते हैं कि करप्शन के जो बाजार गर्म हुए में वो बंद हो। आज पंजाब में देखिए आप, पैरा अल्हम्दुलिल्लाह पैरा की फोर्स बनाइए, कोई इंक्रोचमेंट आपको नजर नहीं आएगी और कोई सियासी जमात ये काम नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। और ये हमें बातें ना सुनाएं कि हमने बॉयकॉट किया हुआ था, तुम्हें जीतने का पता होता तुम कभी बॉयकॉट ना करते। और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बॉयकॉट का जो नैरेटिव है वो शुरू किया गया है। इलेक्शन से पहले बिल्कुल बैठे हुए थे देखने के लिए कि शायद कोई अचानक रेवोल्यूशन आ जाए और अचानक लोग निकल के आ जाएं और हम कहें कि देखा हमारी जो बॉयकॉट के बावजूद अवाम का सैलाब उमड़ आए, और अवाम का सैलाब अगर उमड़ आए धांधली के बावजूद तो आरटीएस बंद करना पड़ता है आपको, उसके बावजूद आप पंजाब जीत जाते हैं, धांधली से आपसे पंजाब की हुकूमत छीनी जाती है। ये होता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में बदतरीन धांधली हुई, कि उसके आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, लेकिन हमारे जिस तरह के मुस्लिम लीग नून के जलसे थे लोगों को पता चल गया उन जलसों के बाद की धांधली हुई, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दस्का के इलेक्शन में धांधली हुई, जब धुंध छाई दुनिया ने देखा, उनके हलक से इलेक्शन निकलवाया। ये होती है सियासी जिद्दोजहद। सियासी जिद्दोजहद जो है वो जीतने के लिए नहीं होती, वो अपने आप को मनवाने के लिए होती है, अपना लोहा मनवाने के लिए होती है। अगर पॉपुलैरिटी है तो फिर साबित करनी होगी। मियां वाली से मुस्लिम लीग नून जीती है माशाल्लाह। मियां वाली, क्योंकि मियां वाली से एक शख्स निकला, जैसे भी वजीर आजम बना धांधली से ही बना, फैज ने बनाया लेकिन बना तो सही ना, वो बाबा जी जो डैम वाले थे उन्होंने बनाया लेकिन बना तो सही ना। उस मियां वाली में जब मैं गई तो मुझे पहली दफा जब चीफ मिनिस्टर बन के गई मुझे लगा मैं पत्थरों के जमाने में आ गई। जिस जगह से आप पावर की जिस सीट से आपने जन्म लिया हो और वहां पर आप मुड़ के कभी पूछे ही ना कि वहां लोगों का क्या हाल है, तो वहां पर आपको कुछ देर तो लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, हमेशा के लिए आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज मियां वाली के अंदर ग्रीन बस चल रही है माशाल्लाह, वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज मियां वाली की सड़कें बन रही हैं, मियां वाली की ब्यूटिफिकेशन हो रही है। मैंने बिल्कुल कोई
पॉलिटिकल ऐसा नहीं रखा उनके साथ कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो मैंने यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं कराना। मैंने आगाज ही मियाँ वाली से किया, क्योंकि मुझे मियाँ वाली के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब के हर इलाके के लोगों से प्यार है, मुझे पाकिस्तान के लोगों से प्यार है। तो ये फतह ऐसे नहीं होती, अल्लाह ताला की देन होती है और इसके पीछे दिन रात की मेहनत होती है। इसके पीछे आपको काम करना आना चाहिए। जिनको काम करना नहीं आता उनको आप बेस्ट टीम दे दो। यही टीम के पीटीआई के साथ भी थी ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, यही टीम पीटीआई के साथ थी। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां बनना हो और जहां पे नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन लिख रही हैं कि ये सूबा जो है या पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। तो जादू टोने से थोड़ी देर के लिए तो इंसान को कामयाबी हो सकती है, फिर अल्लाह ताला की भी लाठी बे आवाज है। और आज रोते हैं कि मुलाकात नहीं करने देते। मरियम नवाज शरीफ के साथ भी यही होता था, नवाज शरीफ के साथ भी होता था, शहबाज शरीफ के साथ भी होता था, पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ ये जुल्म होते थे। मेरी जो बेटी थी छोटी, उस वक्त वो 13-14 साल की थी, वो रोती हुई आती थी मुझे जेल में मिलने, रोती हुई जाती थी और अक्सर हमें मिलने नहीं दिया जाता था। आज जो बहुत शोर मचा रहे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं और नवाज शरीफ साहब एक ही जेल में होते थे, चंद गज का फासला था उनके सेल में और मेरे सेल में। मुझे नवाज शरीफ साहब से हफ्ते में एक दफा मुलाकात की 20 मिनट इजाजत होती थी। बाप और बेटी को जो एक ही सेल में रहते थे, एक ही जेल में रहते थे। माँ की मौत की जो खबर है वो मुझे जेल में मिली थी, लेकिन मैंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। ये वो सोच भी नहीं सकते। ये तो अपने अमालों का जो फल है वो खा रहे हैं ना, ये अपने अमालों का जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं। हमें जुल्म का निशाना बनाया गया था। मैं अगर अपने मुल्क, खुदा न खास्ता, अपने मुल्क के ऊपर हमला करूं और फिर मैं सोचूं कि मुझे गले में फूलों के हार डाले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। जब आप कानून तोड़ेंगे, जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है। आपने धांधली की, आपको फिर भी चलने दिया गया। आपने पीछे से पूरी जो तोड़ जोड़ करके आपने लोगों को इलेक्शन हरवाए, उनकी इज्जत उछाली, उनकी पगड़ियां उछाली, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। द डे यू अटैक योर ओन कंट्री, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। और आज लोग बहुत मुतमिन है, जो हमें पीएमएलएन को हर हिस्से में, हर हल्के के अंदर एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये सारे वो वोट हैं जो टूट के वहां से यहाँ आए। और धांधली जो है वो 1,40,000 पीएमएलएन है और वहां पर 10,000 है। तो ये धांधली नहीं होती, धांधली 5, 6, 7 हजार की होती थी, जैसे हमारे साथ होती थी डस्का के इलेक्शन में, वजीराबाद के इलेक्शन में, उसको धांधली कहते हैं। धांधली जो है वो 90-10 का फर्क नहीं होती। और मैं पंजाब के अवाम की दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खिदमत को कबूल किया। उन्होंने नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर अपनी मोहर सख्त की और उन्होंने झूठ की, मुनाफिकत की और साजिश की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो अब हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम उस काम की तरफ, उस मेहनत की तरफ वापस आते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया और पंजाब के अवाम ने और हरीपुर के अवाम ने जो है इस तरह वोट दिया मुस्लिम लीग नून को। तो हम उसी चीज पे वापस आते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ऑनेस्टली ये हमारा जो पूरी टीम की मेहनत है इसमें, और ये अवाम की फतह है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अवाम की तरक्की की फतह है, उनकी बेहतरी की, उनकी भलाई की फतह है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम को इस चीज का एहसास है
کہ جو ان کی نجات ہے, ان کی جو بقا ہے, ان کا جو فیوچر ہے وہ پرفارمنس کے اندر چھپا ہوا ہے. جو ویل چیئرز پہ کل آئی ہیں, وہ بوڑھی خواتین جو مشکل سے چل کے جو پولنگ سٹیشنز تک آئی ہیں, وہ بزرگ افراد جنہوں نے کہا ہم نے تو نواز شریف کو ووٹ دینا ہے کیونکہ اس نے کام کیا ہے, ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے کام کو ووٹ دیا ہے, ان تمام خواتین کو جنہوں نے ایک محفوظ پنجاب کو ووٹ دیا ہے, میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں.